the formula of conservation of angular momentum into time and frequency. Okay, so convert this formula into, so let's write conservation first. Conservation of angular momentum. And you know every time we are writing this, so obviously इतनी बार अगर खुद भी लिखेंगे बोलेंगे, so we could remember it. भूल नहीं पाओगे इसको, ठीक है? लेकिन कल लिखना पड़ेगा. So obviously when you have this and when you have conservation, so you can write I1 omega 1 equal to I2 omega 2. But this you can write only when conservation is there. Conservation means no net external torque is applied. बाहर से कोई भी torque नहीं लगा. Now, but can I convert this formula into omega? Can I write omega by t, 2 pi by t? ठीक है? Let's write down in that way. First write frequency. Okay? And then can I write 2 pi into I into f and apply the equation. I is already there, na? I is already there. I1 into 2 pi, keep it like that only. 2 pi into, now see, so 2 pi into f1 will be equal to I2 into 2 pi into f2. Is that okay? Now 2 pi from both sides will cancel out and we got the relation I2 f2. Is that okay? Yes, sir. And one more point, very very important point. We can write here I या omega is inversely proportional to I, isn't it? कैसे होगा ये? चलो ट्राई कर लेते हैं. पहले बता रहा हूँ I omega. If this is constant, can I write this as like this? And if this quantity is constant, if this omega is, this L is constant, so can I write 1 upon I, और उल्टा करके लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, वो प्रॉब्लम आ रहा है. Now this quantity is constant, so constant quantity अगर remove करेंगे, then you will get directly proportional relation here with I upon 1 upon I. So now we got omega is inversely proportional to I. ये याद रखना सबको, ठीक है? This comes from this first one. Okay, this first one will give the relation. अभी हमने देखा था if omega I decreases, moment of inertia decreases, speed, angular speed increases. हुआ था ना, कल भी एग्जाम में देखा था. एक ऐसे हैमर लेके ऐसे बैठा था चेयर पे और वो रोटेट कर रहे हैं. जैसे इसने अंदर किया more rotation will be there. So omega increases. So as I decreases, omega increases. As I increases, omega decreases. Is that okay? Now similarly, can you make the formula from here also? This is first formula, this is second number, and can you create the same thing here? From this, can I write frequency equal to L upon I into 2 pi. 2 pi into I. Again, this whole thing is constant. When this is constant, can I write the same thing here also? Inversely proportional. Now somebody can ask you, draw the graph between omega and moment of inertia. So what you will do? You will draw like this. Same graph you can convert here also. I and this is frequency. Again the same graph. So graph also you need to prepare like where is inversely proportional, graph should be like this. Is that okay? Now we get two formulas. One is I1 omega 1 equal to I2 omega 2. You could remember it also I omega. I omega से ऐसे convert कर सकते हैं ना कभी भी? By using I omega you can write any time now. Similarly you can write L equal to I into F. 2 pi is also there, but 2 pi is a constant. Both sides it will be, so we can cancel it out.
ठीक है, एनी क्वेश्चन सेकंड फॉर्मूला, ये कौन सा हो गया हमारा, दिस इज सेकंड वन. नाउ द थर्ड वन वी आर डूइंग. सो कैन आई राइट L equal to I omega and L equal to I into 2 pi f. Can I write I into 2 pi into 1 upon t? Is that okay? Yes, sir. Can I write it as 2 pi into I upon t? This is also the number. This is also another formula. Now by using this formula, can you write if L is constant, then what you can write? You can write 2 pi I1 upon T1 equal to 2 pi I2 by T2. 2 pi cancel out. Can you write I1 into T2 equal to I2 into T1? ऐसे लिख सकते हैं क्या? One formula, okay, using this, or what you can write, I1 by I2 equal to T1 by T2. T1 by T2. Check करो, is there any problem here? ठीक है, किसी को कोई problem है इसमें? And by this relation I could find out I is directly proportional to T. और T is directly proportional to I. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर टाइम पीरियड डायरेक्टली डिपेंड करता है. ये वैसे ही पता लग गया हमको यहीं से, ये देखो यहाँ से पता लग गया था, लेकिन हमने पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया. बट यू कुड फाइंड आउट दिस रिलेशन फ्रॉम हियर डायरेक्टली आल्सो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम. सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, and time period is also inversely proportional to frequency. So that means, बोलो, that means दुश्मन का दुश्मन दोस्त. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्या हो जाएगा? अरे डायरेक्टली तो नहीं जाएगा. देखो, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये दोनों डायरेक्टली हो गए. ठीक है, नंबर 4, everyone, number 4. Now listen. Can I convert? अब एक चीज देखो ध्यान से, ये सुन में आता, लीनियर मोशन में, in linear motion is there any relation between momentum and kinetic energy? किसी को याद है क्या? momentum and kinetic energy रिलेशन होता है बेटा. ये देखिए, ये दिमाग में भर लो अच्छे से. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. क्या काइनेटिक एनर्जी में कैन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m? क्या हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं m का? इफ आई मल्टीप्लाई, ये तरीका याद कर लो हमेशा फिक्स है. सो आई कैन राइट m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m. कैन आई राइट mv होल स्क्वायर डिवाइड बाय m? व्हाट इज mv? What is mv? Momentum. p square by m. समझ में आया? क्या रिलेशन आ गया? p square by 2m. क्या रिलेशन आ गया? p square by 2m. याद कर लो, 12th में भी काम आएगा ये. अब क्या होगा जरा बताना. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये है ट्रांसलेशनल. क्या है ये? Translation. लीनियर मतलब ये कौन सी है? लेकिन अगर बताओ रोटेशनल, बताओ रोटेशनल में, बताओ रोटेशनल में p का क्या हो जाएगा और m का क्या हो जाएगा? L इक्वल टू I को क्या करें बताओ, बोलो. ऐसे करें, स्क्वायर कर दे मतलब ऐसे लिख दो. I1 omega 1, write down like this, I2 omega 2. ठीक है. Now multiply on both side by half. हाफ से मल्टीप्लाई करो, नहीं पहले हाफ से, पहले स्क्वायर करो. Squaring both side. So I1 square omega 1 square equal to I2 square omega 2 square. ठीक है. Now I1 का हाफ से मल्टीप्लाई करो. I1 square omega 1 square I2 square omega 2 square. चलेगा क्या? अब देखो ध्यान से,
write down I1 here, multiply by half I1 omega 1 square. Write I2 into half I2 omega 2 square. ठीक है, समझ में आ गया? I1 into what is it? What is it? Kinetic energy भाई. And what is it? Kinetic energy 2. कौन सा kinetic energy है ये? कौन सा kinetic energy है? Rotational. Rotational kinetic energy. ठीक है? Rotational kinetic energy. क्या दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए? ये वाला भी फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला भी रखेंगे. ठीक है? Now tell me I1 upon I नहीं ऐसे लिखिए. Right now like this. Kinetic energy 1 upon kinetic energy 2 will be equal to I2 by I1 आ रहा है या नहीं आ रहा है देखो. Kinetic energy 1 inversely proportional to I. ठीक है? So this is very important relation. Again ग्राफ क्या आएगा? Kinetic energy और मोमेंटम, ये मोमेंटम इनर्शिया का फिर से ऐसा ही ग्राफ. So according to conservation of momentum, पहला रिलेशन, अरे सुनो ध्यान से, पहला रिलेशन I1 I2 ओमेगा 2 फर्स्ट रिलेशन. सेकंड रिलेशन बोलो भाई, सेकंड रिलेशन बोलो. I1 फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल टू I2 फ्रीक्वेंसी 2. तीसरा इक्वेशन बोलो, I1 into T2 इक्वल टू I2 into T1. ठीक है ना? इससे मिल गया ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. इससे मिल गया फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, और इससे मिल गया टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है? फोर्थ वाला क्या आया था हमारा? I1 into काइनेटिक एनर्जी 1 आया था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला. सो I1 काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू I2 काइनेटिक एनर्जी 2. ठीक है? सो हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है? ये चार फॉर्मूले याद होने चाहिए. ठीक है? जहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2. जहां पे डायरेक्टली है वहां 1 2 2 1. ये भी याद रखना. ठीक है? Is that okay? So in that way you can remember this. Now the question is, my question is, if this is a hypothetical situation. कैसा situation है? Hypothetical है. It cannot be possible. ठीक है? But so it's a hypothetical situation. ठीक है? Hypothetical situation. क्या होता है hypothetical? Imaginary situation. So if Earth shrinks to 1/64 of its original volume, ठीक है, suddenly find new duration of the day. ठीक है? नई ड्यूरेशन लीजिए. ड्यूरेशन ऑफ डे, नया ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा? चलो बताओ. अगर श्रिंक कर जाए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट. दैट मींस दोनों टाइम पे मास सेम है, बस श्रिंक कर गया. मतलब जैसे सोचो कि कोई चीज फैली हुई है, उसको इकट्ठा कर दिया है ना, श्रिंक कर दिया, तो उसका कॉम्पैक्ट बढ़ जाएगा, मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है? डेंसिटी इंक्रीज. इज दैट ओके? नाउ द प्रॉब्लम इज वी नीड टू फाइंड आउट टाइम पीरियड. क्या पता करना है भाई? टाइम पीरियड पता करना है. क्या पता करना है? और टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन चारों में से कौन सा ज्यादा? देखो, which one is the time period formula? by duration of the day मतलब टाइम पीरियड. और ड्यूरेशन ऑफ द डे उसके एक्सिस पे घूमने की वजह से होता है. अर्थ के ड्यूरेशन ऑफ द डे मतलब द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. वही तो डे टाइम है ना. डे और नाइट कैसे बनते हैं? एक्सिस रोटेशन से. ठीक है? एक फैक्टर है उसका. क्लियर? सो वन फैक्टर इज एक्सिस रोटेशन ऑफ द
एक्सिस उसके तो रोटेशन ऑन द एक्सिस अर्थ अपने एक्सिस पे तो सिचुएशन ये है अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है डे और टाइम अभी कितना है 24 आवर्स कितना डे डे मतलब 12 आवर मैं डे का ड्यूरेशन मतलब पूरा मान रहा हूं 24 आवर्स ठीक है मतलब डे एंड नाइट क्लियर ना बट उसके बाद क्या हुआ सडनली इट श्रिंक्स टू 164 assume that volume is v naught and now volume is 1 by 64 of v naught that is v naught by 64 is that okay कितना वॉल्यूम हो गया this is what volume original is that okay and now earth swings to this but दोनों का मास कितना है अभी भी मास से अभी मास क्या है बट क्या चेंजेस आए भाई वी हैव रेडियस r ये छोटा हो जाएगा यहाँ पे रेडियस कितना हो गया छोटा हो जाएगा स्मॉल हो गया यहाँ रेडियस कितना हो गया मतलब इज दैट ओके तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या चेंज आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस और इंक्रीजेस बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर रहा है व्हाट अबाउट टाइम पीरियड है ना समझ में आ रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा डिक्रीज जरा सोच के देखो दिमाग में सोचना अच्छे से बिकॉज़ इफ यू कैन नॉट थिंक ना द प्रॉब्लम वाज सो थिंक अबाउट इट कि कैसे चेंज होगा ड्यूरेशन ऑफ द डे कैसे कम होगा जब वो तेज घूमने लगेगा अरे अर्थ अगर तेजी से घूमने लगे तो ड्यूरेशन ऑफ डे बढ़ेगा कम होगा बढ़ेगा कम होगा अगर अभी धीरे ऐसे घूम रहा है तो अभी सन के सामने ज्यादा देर तक रह रहा है ऐसे घूम रहा है धीरे धीरे सन के साथ ज्यादा देर तक रह रहा है तो ज्यादा लंबा डे लेकिन अगर ऐसे घूम गया तो जल्दी खत्म हो जाएगा नहीं जल्दी खत्म तो देखो आई अगर तुमने कम कर दिया if you are reducing I in moment of inertia what happened to omega increases so it will rotate faster as compared to original is that okay समझ में आया तुम्हें बात any question so what is the and no external force is applied so लिख देंगे as no force is applied as no external torque is applied then angular momentum is constant ठीक है क्यों constant है due to conservation of angular momentum is that okay everyone if it is constant then what you will do so you can write I1 into ऐसे एक बार और दोबारा करके दिखा देता हूं मैं ना I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 दोबारा करके दिखा देता हूं ठीक है दोबारा करके अप्लाई कर देता हूं क्लियर नाउ अब क्या करेंगे what I do I will write I1 into 2 pi by t लिख दें equal to I2 into 2 pi by t2 2 pi cancel out I1 by I2 equal to I2 by t2 is that okay now we need t2 by t1 because new time period is 2 so t2 by t1 so t2 by t1 is I2 by I1 कितना हो जाएगा I2 by I is that okay everyone when now the problem is what is the moment of inertia of this final one final will be as earth is solid sphere earth कैसा होता है solid sphere कैसा होता है solid sphere 2 by 5 m small r square divided by 2 by 5 m capital R square cancel हो गया yes sir 2 by 5 याद है सबको solid का yes sir so what is the final relation is R square over R square is that okay everyone is that okay yes sir any question in it now what you need to do क्या करना है आंसर तो नहीं आया ना अभी भी फाइनल आंसर तो नहीं आया ना
क्या है बताइए फिर अभी आर और आर का रिलेशन आ गया आई हैव टू क्रिएट दिस रिलेशन आल्सो लाइक आई हैव टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन हां तो I1 by I2 equal 3 I2 by सर हाँ आई 3 हो गया क्या हो गया आई 3 आई हो गया हाँ दिस इज T1 है ना दिस इज T1 एंड दिस इज I2 हाँ ठीक है तो T2 इधर चला जाएगा I1 है सही ठीक है वो लिखने में गड़बड़ क्या मैं R और R में रिलेशन निकाल सकता हूँ नाउ द टास्क इज ऑफ 10th क्लास टास्क किसका 10th क्लास का क्या 10th क्लास में मैथ में क्वेश्चन किए थे एक स्फीयर को मेल्ट कर दिया और सिलेंडर बना दिया है किधर नहीं क्या एक गुलाब जामुन की शेप में एक सिलेंडर है ना ऐसे क्वेश्चन किए थे सर तो क्या होता था दोनों केस में अगर एक सिलेंडर को मेल्ट करके तुम स्फीयर बना रहे हो तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है क्या चीज कांस्टेंट रहती है वॉल्यूम समझ में आ रहा है एक अगर सिलेंडर को तुमने क्या कर दिया मेल्ट करके क्या बना दिया स्फीयर क्या कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम क्या रहेगा तो देखिएगा ध्यान से क्या यहाँ और यहाँ क्या वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है देखो कितना दिया है वॉल्यूम रिलेशन दे रखा है ना वॉल्यूम का तो ये वाला क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन में इसीलिए दिया था ताकि तुम इसका हेल्प लेके सॉल्व कर सको तो एज पर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हमने v2 is equals to 1 by 64 of v0 v2 दूसरा v2 जो है वो क्या है 1 by 64 of v0 तो v2 का वैल्यू कितना आएगा जरा बताइए 4 by 3 pi r cube होगा या नहीं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड 1 by 64 into 4 by 3 pi r cube चेक कर लो मैंने यहाँ स्मॉल लिखा है बिकॉज स्मॉल रेडियस है मैंने यहाँ कैपिटल r लिखा है बिकॉज कैपिटल रेडियस ठीक है अब इसको कैंसिल कर दो ये कैंसिल हो गया क्या बच गया r cube equal to 1 by 64 of r cube क्या दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो क्यूब रूट लेने पे क्या पता चला तुम्हें r का वैल्यू कितना है r का वैल्यू कितना है बोलो r by 4 है तो क्या वहां रख सकते हैं क्या r by 4 ठीक है यूजिंग इन इक्वेशन 1 में रखिए t2 by t1 equal to मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो बोल दो अभी भी अरे सर अरे किसी को नहीं आ रही है तो फिर से बोल दो फटाफट मैं दोबारा से बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है ना लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या t2 equal to t1 by 16 आ गया बताओ sir. दिन कितने टाइम्स हो गया 1 by 16 टाइम हो जाएगा 1 by 16 टाइम तो अगर t2 उस 24 आवर का लेंगे अगर t1 24 आवर्स लेंगे तो 16 से डिवाइड करो कितना लगेगा भाई 4 से काट दो 4 से क्या 8 से काटो 8 से 3 by 2 3 by 2 आवर्स 1.5 घंटे का रह जाएगा बस एक दिन 1.5 आवर्स होगी भगवान ना करे ऐसा सीन को